welcome to the World Student Scope. So here I'm Shikha, your English educator, and we are going to continue our same chapter, chapter number 4 of class 7th. Our name of the chapter is the COP and the anthem. You can see in this picture, and little bit you can get the idea here from this picture also. So last class में हमने क्या read किया था? In the previous lecture, what we have discussed that there was a Soapy, a boy who was a jobless man, a homeless man, and he was, winters are just arriving, and he was searching for a safe place to stay. So he was just when he sat on his seat in Madison Square, he was continuously thinking about what he will do and where he will go, how we will find some safe place to stay, because it was not possible for any of the person to stay or to sleep during the night on the table only, because in that severe cold no one is even, it's not possible for anyone to stay there. So he must have to look around for some place to stay. Moreover, he was just having an idea also that people might be allow him to stay, but he have to move from one building to the another, and in either way or in one way or another, he have to just face all the questions and the answer that the people will ask him, and all that question and answer that people will ask him, and moreover he will have to he will have to disclose about his own about his whole life. He have to tell about his own life story, that why he is not having home, why he is homeless, why he is jobless, and why he is searching, from where he had come, from where he belongs to. So just to escape from all such questions, he just thinks of to go to the Blackwell's Island, and it was just he was just find out that idea, that was just amazing. It was just better for him to stay 3 months there during the winter season. So उसको ऐसा लगता है कि वो जो 3 महीने का जो टाइम है, it will be safe for him. But as another plan he was having that he will go to some fine restaurant, and then he will eat some good dinner and some good things he will eat, and after that he will say that I had no money, and then the waiter or that manager, he will call the cops, and then when the cop will come, he will arrest me. This was the idea he was having. But as soon as he entered into the restaurant, the waiter he just threw him out from the restaurant, just because he just saw his broken shoes and his torn clothes, and after that he threw him out. So he that plan was failed. All right. Next was his next plan was he just picked up a big stone, and he just threw on the window, a wide glass window, and after that people just gather around there at the corner, and the cop was also there, and he was saying that don't you think that I might have done this? Then the cop said that no, like if anyone will do this would do this mistake, he or she will might run away as soon as possible. And just at the same time he saw one man who was running. He saw one man, he was running, and he just go behind that man because he was thinking that might be that person has hit the glass, or that person has broken the glass. So this time also the idea of the Soapy has failed. Next is he came after that he entered into a fine restaurant which was not for the rich people. Food was not also so good enough, but then he go there and he had a dinner there, and after that he said I have no money, just call out the cops and he will arrest me. Then the waiter said no, we will not, no cops for you. अब उन्होंने ये बोल दिया कि no cops for you. Then he just called another waiter. Both of the waiters threw him away from his left ears outside that street. After that he stood up, and after that he thought, he was continuously thinking that this idea or the thing which he was looking at, that it's very easy, it was now looking just like a happy dream for him. Now he was thinking that कि ये जो सपना है उसका वो सपना ही रह गया है. It's now the island was looking so far away from
दैट प्लेस, कि वो जो उसका सपना है, जो फिर जो उसका आइडिया है, वो बहुत दूर जो है उसका आइलैंड जो उसको दिख रहा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हियर. अब नेक्स्ट क्या होता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन. अब जो सोपी है 2 बार दोबारा से वो अपना लक जो है वो ट्राई कर लेता है, बट कोप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. जो कोप है वो दोबारा से इनडिफरेंट ही रहते हैं, उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, उसको जो आइडिया फिर से फेल हो जाएगा. वी विल सी. सोपी is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. अब वो जो सोपी है सडनली उसको क्या चीज़ आती है, अपने बचपन जो है उसको वो याद आता है, और बचपन का घर याद आता है उसको, और अपनी मदर जो है वो याद आती है. And he just resolves to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cow. अब इसको एक हैंड दिखता है अपनी आर्म पे, तो वो क्या करता है, एक उसको फील होता है किसी ने, उसने आर्म पे ना, सॉरी उसके हैंड रखा है किसी ने उसकी आर्म पे. तो सोपी जो है जैसे वो मूव करता है टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ द कॉप, तो कॉप का एक ब्रॉड सा फेस देखने के लिए वो मूव करता है. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है, कॉप उसको रेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. विल ही फाइंड सम सुइटेबल प्लेस फॉर हिमसेल्फ और नॉट. देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग. फिर वो दूसरे कॉप जो हैं उसके पास जाता है. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर, जो कि एक बहुत ही बड़े थिएटर के सामने खड़े होते हैं. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. अब वो कुछ और ही करने का सोच रहा होता है. सो ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. अब वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि कोप उसके सामने है, कोप इज जस्ट फ्रंट ऑफ हिम, और उसको ऐसा लगता है कि अब वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, सो दैट कि जो कोप है ही माइट अज्यूम दैट ही इज ड्रंक. तो उसने ड्रंक की हुई है, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिंक की हुई है. सो हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. ही डांस्ड, ही क्राइड आउट. तो वैसे जो है एक्सप्रेशंस हैं वो वैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता है उतनी ज़ोर से वो चिल्ला रहा है. एंड आफ्टर दैट वो डांस भी करना वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट कर देता है, जैसे एक हम कह सकते हैं एक अल्कोहलिक पर्सन जो है वो करता है. तो वैसे वो उनको थोड़ा शो करता है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिंक जो है वो की हुई है, इसलिए वो वहाँ पे कोप के सामने शाउट करना स्टार्ट कर देता है. एंड द कोप turned his back to Soapy and said to a man standing near him. तो अब क्या होता है, जो कोप हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या है. तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं सोपी को, और said to a man, जो उनके पास एक और मैन खड़ा होता है, वो उनको क्या बोलता है, it's one of those college boys, he won't hurt anything. वो बोलता है कि ये वन ऑफ दोस्त कॉलेज का जो है वो लड़का है, एंड ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. वी हैव ऑर्डर्स टू लेफ्ट देम शाउट, कि हम उसको कुछ हर्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हमारे पास इसके ऑर्डर्स हैं कि हम इसको शाउट करने दें. तो इसको शाउट करने के ऑर्डर्स हैं, सो यू कैन शाउट एज मच एज यू कैन. तो जो करना है तुम्हें करो, तो वी आर नॉट गोइंग टू अरेस्ट यू. तो वो जो उसके पास जो मैन खड़ा होता है वो उसको बोल रहा होता है, एज सोपी जो है वो ट्राई कर रहा होता है कि वो शाउट करे. सोपी वॉज क्वाइट. तो पहले तो वो डांस कर रहा होता है, क्राई करना स्टार्ट हो जाता है, और जितना ज़ोर से वो लाउड करना स्टार्ट हो जाता है. जैसे वो कॉप उसको बोलते हैं कि जो उसके पास जो पर्सन खड़ा होता है उसको बोलते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं, सो यू कैन शाउट एज मच एज यू कैन. तो हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम्हें रेस्ट नहीं करेंगे. सोपी वॉज क्वाइट. Was no cop going to touch him. अब जो सोपी है वो शांत हो गया और सोच रहा है कि क्या मुझे कोई कोप नहीं पकड़ेगा, क्या मुझे कोई कोप जो है वो अपने साथ अरेस्ट करके नहीं लेकर जाएगा. तो एक क्वेश्चन सा उसके माइंड में आ रहा है. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फॉर एज अवे एज अ स्टार. अब वो जो आइलैंड है उसके बारे में सोच रहा है, और जो आइलैंड है वो उसको उतनी दूरी पे लगता है जितना कि हमें स्टार लगते हैं. स्टार हमसे कितनी ज़्यादा दूरी पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, उतना ही उसको वो अब आइलैंड लग रहा है, क्योंकि उसके सारे अटैम्प्ट्स जो हैं, सारे आइडियाज़ जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि अब जो आइलैंड जाने का सपना है
आइलैंड पहुंचने का सपना है वो सिर्फ उतना दूर है जितना कि हमसे जो स्टार्स हैं जितनी दूर वो हैं उतना ही दूर उसको वो आइलैंड्स वाला सपना लग रहा है. So he began to think of the island as if it were as far as a star. He pulled his thin coat around him. तो वो अपना जो थिन कोट होता है वो अपने अराउंड पुल करता है उसको. द विंड वॉज वेरी कोल्ड क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही होती है, वो जो ठंडी ठंडी हवा जो है वहाँ पे चल रही होती है. देन ही सॉ अ मैन इन द शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. तो अब क्या होता है, उसको ना एक पर्सन दिखता है जो कि न्यूज़पेपर जो है उसको बाय कर रहा होता है. दुकान पे एक आदमी दिखता है उसको जो कि जो न्यूज़पेपर है उसको बाय कर रहा है. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. अब जो वो पर्सन है ना उसकी जो अम्ब्रेला है वो कहाँ पे होती है, डोर के पीछे वहाँ होती है, उसकी अम्ब्रेला पड़ी होती है वहाँ पे. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. अब वो क्या करता है, सोपी है, he just get inside that shop, he took that umbrella. दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है, अम्ब्रेला उठाता है और धीरे से बाहर को चलना वो स्टार्ट हो जाता है so that he will notice him. Okay, and the man followed him quickly. और जो पर्सन होता है वो उसको बड़ी जल्दी से उसको फॉलो करता है जैसे वो अम्ब्रेला लेके जा रहा होता है. My umbrella, he said. अब वो जो पर्सन है वो उसको बोल रहा है कि मेरी अम्ब्रेला है ये. तो सोपी क्या बोलता है, ओ इज़ इट, कि अच्छा ये आपकी है. तो ऐसे वो जो सोपी है वो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देता है, अच्छा वो आपकी है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कॉप, दिस पर्सन, सोपी इज हैविंग अम्ब्रेला इन हिज हैंड्स. सो व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तो फिर उसका एक ही क्वेश्चन है कि तुम कॉप को क्यों नहीं कॉल करते हो, कि अच्छा ये अम्ब्रेला तुम्हारी. उसको उनको ऐसा बोल रहा है कि अच्छा मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला ली, तो तुम कॉप को क्यों नहीं कॉल करते हो. सो व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, कि मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला ले ली और तुम्हें कॉप को कॉल करना चाहिए. व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. तो क्या तुम कॉप को क्यों नहीं कॉल करते हो. और वो कॉप की बता भी रहा है कि कॉप कहाँ पे खड़ा है. वो बोल रहा है कि वो कॉर्नर पे ऑलरेडी कॉप जो है वो प्रेजेंट है, तो तुम कॉप को क्यों नहीं बुलाते, कॉप तो है भी नज़दीक में ही है. देन द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. अब जो मैन है वो और धीरे से चलना उसकी तरफ स्टार्ट हो जाता है, धीरे से आना स्टार्ट हो जाता है. सोपी डिड द सेम. अब जो सोपी है वो भी ऐसे ही करता है. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन जो सोपी है उसको दोबारा से यही फीलिंग आ रही होती है, यही इंट्यूशंस आ रही होती हैं कि वो दोबारा से फेल हो जाएगा. उसको ऐसा लगता है कि कोप को वो नहीं बुलाएंगे, कोप विल नॉट गोइंग टू अरेस्ट मी, वो मुझे अरेस्ट नहीं करेगा कोप. द कोप लुक्ड एट द टू मैन. अब जो कोप है वो दोनों जो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन दोनों को वो देखता है कोप. I said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. अब वो बोल रहा है कि अच्छा अगर ये आपकी अम्ब्रेला है तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ. वही पर्सन जिसकी अम्ब्रेला थी और सोपी नहीं उठा रही थी, वही सोपी को बोल रहा है अच्छा अगर ये आपकी अम्ब्रेला है तो मैं आपसे, वो उनसे माफ़ी मांग रहा है सोपी से. अब वो क्या बोल रहा है, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट एंड इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल. तो उसको वो बोलता है कि यही अम्ब्रेला मुझे आज मॉर्निंग में रेस्टोरेंट पे दिखी थी और मैंने उठा ली, और अगर अभी आप मुझे ये बोल रहे हो कि ये अम्ब्रेला आपकी है तो वो आपकी ही होगी. इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस. अब बोल रहा है कि हाँ मेरी ही है. उसका वो इतना परेशान हो गया है कि उसने तो कॉप को भी नहीं बुलाया, कॉप ने उसको रेस्ट नहीं किया, तो वो सारा विंटर्स क्या करेगा. तो बड़ा गुस्से से वो बोल रहा होता है. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे. अब जो अम्ब्रेला मैन जिसकी अम्ब्रेला थी वो जल्दी से चला जाता है वहाँ से. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. और वहाँ पे जो कॉप हैं वो एक लेडी की हेल्प कर रहे होते हैं. सोपी वॉक्ड ईस्ट. अब वो जो सोपी है नाउ ही वॉक्ड ईस्ट
एंड ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। अब इतना गुस्सा वो होता है, जैसे वो ईस्ट की उस साइड में जाना स्टार्ट होता है, इतनी उसको गुस्सा होता है कि जितनी ज़ोर से वो अम्ब्रेला को फेंकता है उतनी दूर से वो अम्ब्रेला को अपने फेंक देता है, क्योंकि उसको अम्ब्रेला तो चाहिए ही नहीं है, उसको तो चाहिए था कि कॉप को कोई कॉल करे और वो कॉप उसको अरेस्ट कर ले। He talked to himself about cops and what he thought of them. अब वो खुद से ही जो है वो बातें कर रहा है कॉप्स के लिए, and what he thought of them, कि उसने उसके बारे में क्या सोचा था, because he wished to be arrested. They seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब वो उसका जो आइडिया था वो ये था कि कोई कॉप को बुला दे, कॉप उसको अरेस्ट कर दे, लेकिन अब उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो एक राजा है जो कोई गलती नहीं कर सकता, कि लोग उसको इस तरह से सही मान रहे हैं, गलती करने के बाद भी उसको सही मान रहे हैं, कि वो उसको एक ऐसा लग रहा है कि मैं एक राजा हूँ हु कैन डू नथिंग रॉन्ग। At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. अब जो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो सोपी है कहाँ पहुँच जाता है, वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स, बड़ी शांति वाली जगह पे पहुँच जाता है, क्वाइट स्ट्रीट्स होती हैं ऑन द साइड ऑफ द सिटी, सिटी की साइड पे। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। अब वो टर्न करता है साउथ एंड अपने मेडिसन स्क्वायर की तरफ ही जाना स्टार्ट कर देता है। He was going home, though his home was only a seat in the park. अब वो घर पे जा रहा है और घर उसका क्या है, सिर्फ जो पार्क में एक सीट जो है, जो बेंच सा लगा होता है, वही उसका एक घर है, तो वो अपने घर की तरफ अभी जा रहा है। But at a very quiet corner, Soapy stopped. तो एक क्वाइट कॉर्नर पे जो सोपी है वो वहाँ पे रुक जाता है। He just stopped. Here was his old childhood home. तो जहाँ पे सोपी रुकता है वहाँ पे उसका बचपन का एक, कह सकते हैं हम कि बचपन का एक चाइल्डहुड होम वहाँ पे होता है जहाँ पे वो रुकता है। Through one window he could see a soft light shining. और एक विंडो से वो क्या देख पाता है, एक बड़ी सॉफ्ट सी लाइट है वो जो शाइन कर रही है, विंडो से वो देख रहा है अपने चाइल्डहुड होम को। That had been his living room, where he had spent many happy peaceful moments. अब जो विंडो से वो एक सॉफ्ट लाइट जो देख रहा है, शाइन कर रही है, तो वो उसका लिविंग रूम था। जब वो बचपन की अगर वो सोच रहा है तो वो उसका एक लिविंग रूम हुआ करता था, जहाँ पे उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी एक बड़ी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स जो हैं उसने वहाँ पे बिताए हैं, बड़े अच्छे मोमेंट्स वहाँ पे बिताए हैं, अपनी लिविंग रूम की बात कर रहे हैं। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। अब जो बड़ा प्यारा सा एक सुरीली से उसको जो म्यूज़िक है, बड़ा प्लीजेंट सा जो म्यूज़िक है प्ले हो रहा है, उसके कानों में सुनाई दे रहा है और उसको ऐसा लगता है वहीं बैठा रहूँ, उसको वहीं पे कहीं ना कहीं होल्ड करके रखते। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। अब जो मून है मीन्स कि अभी वो रात हो चुकी है और जो मून है वो उसको क्लियरली दिख रहा है, पीसफुल है, बड़ा रात को बड़ी शांति सी होती है, बड़ा ब्राइट सा होता है, तो वो उसको मून दिखता है। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और बहुत कम से लोग होते हैं वहाँ से जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, तो वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पे जो उसको उनको भी सुन सकता है, जो उसके ऊपर जो फ्लाई कर रहे होते हैं स्काई में, उनको भी वो थोड़ा सुन सकता है। एंड द म्यूज़िक, अब नेक्स्ट क्या होता है, जो म्यूज़िक आ रहा होता है उस रूम से जो उसको म्यूज़िक सुनाई देता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा ठहराव सा आ जाता है सोपी में, वो बैठ के बड़ा आराम से वो उस म्यूज़िक को सुन रहा है जैसे उसके कानों में जा रहा है म्यूज़िक। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, ऐसे कि वो बड़ी देर से बहुत बहुत लंबे समय से वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता होता है। In those days his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. अब वो क्या सोच रहा है, वो टाइम सोच रहा है अपने बचपन का, अपने चाइल्डहुड जो है पीरियड है उसको सोच रहा है कि उस टाइम पे उसके पास अच्छे कपड़े थे,
अपने मदर थे, मतलब अपने पेरेंट्स थे, घर उसका इतना अच्छा था, फ्रेंड्स उसके बड़े अच्छे थे, अच्छा खाना मिलता था उसको, अच्छे अच्छे विचार थे उसके, क्लीन थॉट्स थे और क्लीन कपड़े थे उसके, बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहनता था वो. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है उसकी लाइफ में, कुछ हैपन होता है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उसकी जो सोल होती है वही चेंज हो जाती है. मीन्स उसकी जो लाइफ है बिल्कुल टर्न जो है वो ले लेती है. तो एक बहुत सडन सा और एक वंडरफुल सा चेंज होता है उसकी सोल में. कुछ चेंज बड़ा अच्छा सा, बड़ा वंडरफुल सा चेंज जो अपनी सोल में वो एक्सपीरियंस करता है. He saw with the sick fear how he had fallen. तो अपने sick fear से वो सोचता है कैसे वो गिरा था, कैसे वो हारा था. He saw his worthless days, his wrong desires. अपने worthless days के बारे में सोचता है, अपने wrong desires के बारे में सोचता है, अपनी मरी हुई जो उम्मीदें हैं, जो डेड होप्स हैं, उनके बारे में वो सोचता है. जो लोस्ट पावर है उसके दिमाग की, जो सोचने की शक्ति है, लोस्ट पावर जो है वो उसके बारे में सोचता है. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड हिज दिस चेंज इन हिज सोल. और उसी टाइम पे उसको उसकी जो कहते हैं ना अपनी आत्मा से, उसको एक सोल से उसको जो एक आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जिससे उसकी लाइफ में एक चेंज आता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. वो क्या सोचता है कि वो लड़ेगा अपनी फाइट को, सॉरी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए वो फाइट करेगा, बदलेगा अपनी ज़िंदगी को. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. इस मिट्टी से, इस गंदगी से वो खुद को ऊपर उठाएगा, मेहनत करेगा और अपने आप को इस चीज़ से उठाएगा. ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. वो खुद को एक अच्छा इंसान, एक सेल्फ मेड पर्सन जो है वो खुद को बनाएगा. तो अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा. देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ. कहता एक टाइम था जब वो बड़ा यंग था, बड़ा सही था. एंड ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ. तो वो अपना ओल्ड पर्पज़ जो है वो लाइफ का वो फाइंड कर सकता है एंड फॉलो इट, उसको फॉलो भी कर सकता है. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क. अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. अब क्या होता है उसमें, एकदम से जैसे वो म्यूज़िक सुनता है, एक म्यूज़िक वो जो एक ठहराव सा वहाँ पे वो फील करता है, उसी से ही वो उसके कुछ थॉट प्रोसेस चलते हैं जिससे उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. वो सोच रहा है कि कल जो है टुमारो, वो कल वो कोई काम ढूंढेगा अपने लिए, कोई काम करने के लिए वो ढूंढेगा. एंड अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. अब उसको याद भी आ रहा है कि एक बार एक आदमी ने, एक पर्सन ने उसको जॉब भी ऑफ़र की थी. तो अब वो अपने अर्न करने की सोच रहा है कि वो कुछ वर्क करेगा और उसके बदले में अपनी लाइफ को जो है वो चेंज करेगा, एक सेल्फ मेड पर्सन बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा और अपने आप को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेगा. अब ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. अब वो खुद में वो इंसान जो है वो दिख रहा है. अब वो बोल रहा है कि वो जो पर्सन है जो उसने कभी उसको ऑफ़र की थी जॉब, वो उस पर्सन को कल ढूंढेगा. सो ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. तो वो कोई तो होगा, उसको ऐसा लगता है कि वो उस दुनिया में कोई तो होगा. ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. अब जो सोपी है वो उसको एक आर्म पे एक हैंड जो है वो फील होता है. He looked quickly around into the broad face of the cop. तो वो क्या करता है, आसपास जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो कॉप का फेस है. What are you doing hanging around here? asked the cop. तो जैसे वो एक ब्रॉड सा उसको फेस दिखता है कॉप का, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. Nothing, said सोपी. अब सोपी बोलता है कि कुछ भी नहीं. You think I believe that? अब जो कोप है उसको ऐसा बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बात को सच मान लूँगा. सो फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू. अब अपनी पूरी, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ में है, पहले वो चाहता था कि जो कोप है वो उसको अरेस्ट कर ले, लेकिन अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है और एक जो चीज़ है उसमें खुद में उसने जो फील किया है कि वो एक अच्छा पर्सन बनेगा, एक सेल्फ मेड पर्सन बनेगा, एफर्ट्स करेगा, हार्ड वर्क करेगा. तो अब वो आर्ग्यू करना स्टार्ट हो गया है सोपी उसके साथ. एंड इट इज़ नॉट वाइज
to argue with a New York cop. और ये अच्छी बात नहीं होती है अगर न्यू यॉर्क कॉप के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करे तो। अब क्या होता है, कम अलॉन्ग सेट द कॉप। अब कॉप उसको बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ चलो। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. सी किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं, हाउ थिंग्स चेंज अराउंड अस। अब पहले वो सोच रहा था कि मेरे को कोई कॉप पकड़ ले, अरेस्ट कर ले और 3 महीने मैं आराम से वहाँ पे गुजारूँ ब्लैकवेल आइलैंड पे। जब वो उसकी लाइफ में एक टर्न आ जाता है, जब वो ये सोचता है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, तब क्या होता है, तब उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आता है। कॉप जो है उसको पकड़ते हैं और ये बोलते हैं उसको 3 महीने का वहाँ पे 3 months प्रिजन ब्लैकवेल आइलैंड पे वो वहाँ पे उसको भेज देते हैं। और जो जज होता है सोपी को नेक्स्ट मॉर्निंग यही जो है वो जो ऑर्डर है वो देता है। सी जब उसने सोचा तब उसको मिला नहीं, जब उसने अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश की खुद को, तो उसके साथ उसने कॉप ने उसको अरेस्ट कर लिया। एक्सरसाइज नाउ कम्स टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज What are some of the signs of the approaching winter referred to in the text? कौन से साइंस हमें ऐसे देखने को मिले थे जो कहते थे कि जो विंटर्स हैं वो अप्रोच कर रही हैं। Birds begin to fly south. First one, people want warm new clothes. अब जो लोग हैं उनको warm coats जो हैं वो उनको चाहिए। Dead leaves fall on the ground. जो dead leaves हैं वो ज़मीन पे गिर रहे हैं, तो जिसका एक साइन है कि विंटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। So these were some of the signs of approaching winters referred to in the text. Next is our true or false. Soapy didn't want to go to prison. Yes, so this is false. False, क्योंकि जो सोपी है वो जाना चाहता था। So Soapy had been to prison several times. हाँ, for years उसके लिए एक ठंड से बचने का वही एक जरिया था। It was not possible for Soapy to survive in the city through the winter. Yes, it was not possible. उसके लिए पॉसिबल था ही नहीं, इतनी विंटर्स पे बाहर सरवाइव करना नहीं उसके लिए पॉसिबल था। नेक्स्ट इज सोपी hated to answer questions of the personal nature. No, it's false. Next we are having what was Soapy's first plan, why didn't work. So सोपी का पहला प्लान क्या था और वो क्यों नहीं काम किया। So Soapy's first plan was to eat at an expensive restaurant and tell that he didn't have money to pay for it, and then they would call the cops and the cops would take him to jail. तो उसको ऐसा था कि वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तो उसके बाद बोल देगा उसके पास पैसे नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे, कॉप्स को फ़ोन कर देंगे, कॉप्स उसको जेल में डाल देंगे। तो वो प्लान वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि ही वॉज स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द रेस्टोरेंट, क्योंकि वो दरवाजे पे ही उसने जो वेटर है, हेड वेटर है, उसने उसको रोक दिया। ही टर्न सोपी अराउंड एंड मेड हिम लीव द प्लेस क्विकली एंड क्वाइटली। उसने बोला कि चलो यहाँ से, तो उसको वहाँ से भेज दिया था, इसलिए उसका पहला प्लान वर्क नहीं किया। सो बट द कॉप्स माइंड वुडंट कंसीडर सोपी। वट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड वाई। जो कॉप है उसने कंसीडर उसको क्यों नहीं किया और क्यों नहीं किया उसको कंसीडर। सो कॉप डिडंट कंसीडर सोपी एज द पर्सन हु थ्रू द स्टोन एट द विंडो ग्लास बिकॉज नो क्रिमिनल वुड स्टैंड आफ्टर डूइंग सो एंड टॉक टू द कॉप, कि कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं होगा जो गलती करेगा और वहीं पे कॉप के साथ बातें कर रहा होगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए उसने सोपी को कंसीडर नहीं किया कि उसने गलती की होगी। वी हैव ऑर्डर्स टू लेफ्ट हिम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। अब पुलिसमैन किसको रेफर कर रहा था यहाँ पे, जब वो ये कह रहा था कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि इसको शाउट करने दें जितना वो शाउट करना चाहता है। द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू द ऑर्डर्स टू नॉट अरेस्टिंग द शाउट टू द ऑर्डर्स फॉर नॉट अरेस्टिंग द शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, की जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो शाउट करते हैं उनको अरेस्ट ना करने के हमारे पास ऑर्डर्स हैं। True and false. So Soapy stole a man's umbrella. Yes, he stole. So this is true. The owner of the umbrella offered to give it to Soapy. जो ऑनर था अम्ब्रेला के उसने ऑफर किया था कि वो सोपी को दे दे, मीन्स कि वो जो अम्ब्रेला थी वो ऑलरेडी उस पर्सन की भी नहीं थी, तो वो ऑनर नहीं था। सो फॉल्स।
द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। तो वो जो अम्ब्रेला थी वो उस मैन ने भी चुराई ही हुई थी, वो भी उसकी नहीं थी खुद की। सो ट्रू, सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। ट्रू, जो सोपी ने उसने अपनी अम्ब्रेला फेंक दी थी उसके बाद। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। उसमें एक वंडरफुल, एक बड़ा अचानक से जो एक चेंज है उसकी जो सोल है उसमें देखने को मिलता है। सो व्हाट बॉट द चेंज इन सोपी। तो उसने सोपी में क्या चेंज लेकर आया वो। सोपी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। तो वो उस घर के सामने जब खड़ा था जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया था, तो ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर। तो उसको अपनी मदर की याद आती है। स्वीट म्यूजिक जब वो प्ले हो रहा होता है, यूज टू इन्जॉय इन हिज रूम। तो वो देखता है, वो लिविंग रूम होता है एक्चुअली, वहाँ पे उसने अपनी उसकी बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वहाँ से होती हैं वहाँ पे। सो एंड द डिसेंट लाइफ ही यूज टू हैव बैक देन ही डिसाइडेड व्हाट ही वुड वर्क एंड बिकम अ समबडी इन लाइफ। तो वो क्या कहता है कि जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़ी अच्छी, बड़ी डिसेंट लाइफ होती है उसकी। अच्छा घर होता है, अच्छे लोग होते हैं उसके पास, अच्छे कपड़े होते हैं पहनने के लिए। तो वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेगा, हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप्स। सो यू नीड टू डिस्कस सच टॉपिक्स इन अ ग्रुप। Suppose no cop came at the end, what would Sophie's life be like through the winter? अगर कॉप जो है वो एंड पे ना आता तो क्या होती सोपी की लाइफ विंटर में। So Sophie's life would have been very difficult in the winter. He wouldn't have a house and food. He would have had a bad winter. However, if he would be determined to work and lead a decent life once again, he could have achieved it gradually. क्योंकि अभी तक तो उसके पास घर नहीं था, कुछ खाना नहीं था, खाने के लिए कोई रहने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अगर वो खुद में कुछ चेंज लेकर आना चाहता था तो धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं सेट हो सकता था। तो ग्रेजुअली उसकी लाइफ में चेंज जो है वो आ सकता था और वो कुछ ना कुछ अचीव कर भी सकता था। Retell an episode in the story which is a good example of irony in a situation. Irony कैसे हम कह सकते हैं सिचुएशन की, कौन सा एक जो एपिसोड है जो स्टोरी में हमें बताया है। When Sophie felt that winter was approaching, he decided that he would spend the 3 months in jail. जब विंटर्स आ गया तो उसने बोला था कि वो 3 महीने जेल में स्पेंड करेगा। For that he decided that he would have do some small crime. और उसको ऐसा था कि उसके लिए उसको छोटा मोटा कोई क्राइम करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसको 3 महीने की जेल हो जाए। But even after trying multiple times, he was not caught by cops. लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी कॉप्स ने उसको नहीं पकड़ा, उसको कैच नहीं किया। सो व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क एंड लीड अ डिसेंट लाइफ, जब उसने ये सोचा कि वो एक डिसेंट लाइफ जिएगा, एक अच्छी लाइफ जिएगा, हार्ड वर्क करेगा, तो क्या होता है, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ कॉप। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। ये आयरनी एक सिचुएशन में एक बहुत गुड एग्जाम्पल है विच इज़ यूजुअली ऑफनली एम्बैरसिंग। तो जैसे पहले उसने जो सोचा वो हुआ नहीं, जब उसने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की तो वो दोबारा से वो जो चीज़ चाहता था फिर हुई जब वो नहीं चाहता था। मीन समटाइम्स जो हम एक्चुअली चाहते हैं उस टाइम पे वो नहीं होता है, और जिस टाइम पे वो होता है उस टाइम पे हम उस सिचुएशन में नहीं होते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने द कॉप एंड द एंथम जो है आज कंप्लीट कर ली है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। एंड ये जो स्टोरी थी ये एक आयरनी थी ऑफ द सिचुएशन, जहाँ पे हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उससे समटाइम्स ऐसे हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उससे जो अपोजिट है वही हमारे साथ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू हैव क्लियरली understood and easily understood this chapter. So that's all, and thank you and have a nice day.